Hello, today we'll talk about the President of India, the qualification for election of the President, composition of Electoral College, reason for indirect elections, terms of office, procedure for impeachment, power of the President, that is the executive power, the legislative power, the financial, judicial, discretionary, and emergency powers of the President. The President, the executive power of the Indian Union is vested in the President. That means the President is the head of the Indian Union. The Indian Union is the united country of India, that is the state government, and the central government is the Indian Union, and the President is the nominal head of the Indian Union. He is the executive power, that is, he is the first citizen of the country. Whenever any foreign delegates come to India, it is the President who welcomes these foreign delegates. The President exercises his powers either directly or through officers subordinated to him in accordance with the Constitution. The President is the head of the state and the supreme commander of the defense forces of India. The President exercises his powers on the advice of the Prime Minister and the Council of Ministers. So here is the catch. Though the President is the head of the Indian Union, he is only the nominal head because he can exercise his power only on the advice of the Prime Minister and the Council of Ministers. He cannot exercise his powers independently. Mostly he cannot do that, but sometimes he has his own discretion. At times he can exercise his powers. That is when immediately after the general elections, when he has to call upon the candidate who has won the most seats in the Lok Sabha, the leader of the party which has won the elections. It is here that he uses his discretion, especially when there is a very close contest between two political rivals, two political parties. So he may call the party which has got the maximum seats, or he may call in the party which he feels can make a government. Otherwise, the President is just the nominal head. The Constitution provides that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his or her functions. According to the 42nd Amendment Act, it is necessary for the President to exercise his or her functions in accordance with the advice of the Council of Ministers. So it makes it necessary for the President to exercise his right or exercise his functions on the advice of the Council of Ministers. So the 42nd Amendment Act has made this compulsory for the President to follow the advice of the Prime Minister and the Council of Ministers. तो प्रेसिडेंट केवल बोलने के लिए देश का प्रमुख नागरिक है, क्योंकि जो सारा का सारा जो अधिकार दिया गया है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में दिया है. प्रेसिडेंट को इनकी बात मानकर चलना पड़ता है. सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर द elections of a president?
इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट इफ ही ए is a citizen of India, B has completed the age of 35 years, and C is qualified for election as a member of the Lok Sabha। तो ये 3 क्राइटेरियाज है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर वो चाहता है कि वह भारत देश का प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने, तो उसको राष्ट्रपति बनने के लिए जो इलेक्शन लड़ना है उसके लिए 3 क्राइटेरियाज है। सबसे पहले तो उसे भारतीय नागरिक होना है। वो NRI नहीं हो सकता, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन नहीं रह सकता। वो कोई परदेशी, कोई फॉरेनर आकर इंडिया में आकर इलेक्शन लड़े। बाराक ओबामा, अमेरिका का एक्स प्रेसिडेंट, बहुत प्रसिद्ध इंसान है, इंडिया में आकर वो इलेक्शन लड़ ले और इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर किसी को प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ना है तो पहला क्राइटेरिया ये है कि वह भारतीय नागरिक हो, ही शुड बी एन इंडियन सिटीज़न। दूसरा है वो कम से कम 35 साल का व्यक्ति होना चाहिए, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज। और तीसरा है उसके पास वह सारे क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए जो किसी भी एक लोकसभा के मेंबर्स के लिए है। जो लोकसभा का जो मेंबर का क्वालिफ़िकेशन है, दैट इज़ उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होना चाहिए, वो बैंकरप्ट नहीं रहना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का रहना चाहिए। ये सारे के सारे जो क्राइटेरियाज़ एक लोकसभा का जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, जो मेंबर्स होता है, वह सारे के सारे कानून भी प्रेसिडेंटल कैंडिडेट के ऊपर लागू होते हैं। When is a person not eligible to be the President of India? A person shall not be eligible for election as president if he holds any office of profit under the government. तो अगर प्रेसिडेंट बनना है तो आप गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं रह सकते, चाहे वो कितना छोटा पोस्ट क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा पोस्ट क्यों ना हो। You cannot hold any government office. If you want to contest the election, you can contest the election, but if you win, you have to resign. A person shall not be eligible for election as president if he holds any office of profit under the government of India or government of any state or under any local or other authority subject to control of any of the state governments. So he should not have any office of profit. However, a person is not deemed to hold an office of profit by reason only that he is president or vice president or a minister either of the union or for any state. A person who holds or who has held office as president shall be eligible for re-election to that office subject to other provisions of the Constitution. तो जिससे मैंने बताया कि प्रेसिडेंट जो होता है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का प्रमुख होता है, कमांडर इन चीफ होता है। तो क्या ये एक और एक ऑफिस नहीं है? प्रेसिडेंट के अलावा वो कमांडर इन चीफ है, लेकिन एज अ कमांडर इन चीफ उसको सैलरी नहीं मिलती। उसको सैलरी केवल और केवल प्रेसिडेंट के रूप में मिलती है, इसीलिए ही होल्ड्स ओनली वन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कमांडर इन चीफ का सैलरी उसको नहीं मिलता है। सो एक इंसान कितने बार प्रेसिडेंट बन सकता है? चाहे जितने बार बन जाए, इंडिया में चाहे 2 बार बन जाए, चाहे 3 बार बन जाए, लेकिन ये निर्णय करता है कि क्या उसके लिए वो एलिजिबल है। हाँ, क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है, क्या उसमें उतनी क्षमता है। हाँ, वो बार बार इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन जीत कर आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसे तो 2 बार लोग बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी जो प्रेसिडेंट को जो लोग इलेक्ट करते हैं, जो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के लोग मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, इसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ नंबर 1 the elected members of both houses of the parliament, that is the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Number 2, the elected members of the legislative assembly of the states including National Capital Territory of Delhi and the Union Territory of Puducherry. तो ना केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा यूनियन टेरिटरी, दिल्ली के जो दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी और दिल्ली इज़ अ स्टेट कैपिटल ऑल्सो, दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑल्सो, तो दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ये लोग मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट देखो, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा और लोकसभा है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन इलेक्ट करता है? लोग इलेक्ट करते हैं। लोकसभा को कौन इलेक्ट करता है? लोग करते हैं। लोकसभा से राज्यसभा में जो मेंबर्स को प्रमोट करते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट वाले जो है वो अपने मेंबर्स को राज्यसभा में प्रमोट करते हैं, और राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर, लोकसभा के मेंबर्स मिलकर और स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट है। हम लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे इलेक्टेड मेंबर्स, हमने जिसे इलेक्ट किया है, वह मेंबर्स मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट को हम एक नॉमिनल मेंबर कहते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज आर नॉट एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी जो मेंबर्स जो नॉमिनेटेड है, जैसे 12 मेंबर्स जो होते हैं या 2 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है और राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, तो इनका अधिकार नहीं होता है इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि ये हमसे इलेक्टेड लोग नहीं हैं। इन्हें केवल नियुक्त किया जाता है, और इन्हें नियुक्त कौन करता है? इन्हें नियुक्त करता है प्रेसिडेंट। जो पहले प्रेसिडेंट थे वो नियुक्त करते हैं इनको। ठीक है, तो नॉमिनेट मेंबर्स, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो इलेक्शन में भाग नहीं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं। A presidential candidate will have to be proposed by 50 members of the electoral college, that is MPs or MLAs, and seconded by another 50 members. तो जिस व्यक्ति को प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में इलेक्ट होना है, उसे तो कम से कम 50 मेंबर्स जो है, या तो MLAs रहेंगे या MPs रहेंगे, वही इस प्रेसिडेंटल कैंडिडेट को नियुक्त कर सकता है। वो उसके लिए उसका नाम प्रपोज कर सकता है। तो 50 मेंबर्स प्रपोज करेंगे और 50 मेंबर्स क्या करेंगे? उसको सेकेंडेट करेंगे, यानी कम से कम 100 लोग उस व्यक्ति के सपोर्ट में रहना चाहिए जो इलेक्शन प्रेसिडेंट बनने के लिए लड़ना चाहता है। दिस वॉज इंक्रीज्ड बाय अर्लियर द रिक्वायरमेंट वॉज 10 proposers and 10 seconders. This was increased by an ordinance promulgated in June 1997 that became an act of parliament on August 29, 1997. The ordinance also raised the security deposit of a candidate for the presidential election from rupees 2,500 to rupees 15,000. तो कम से कम 50 मेंबर्स उसको सपोर्ट करना चाहिए, 50 मेंबर्स उसको सेकेंड करना चाहिए, और उसे 15,000 रुपये का फ़ीस भरना होता है। 15,000 का एंट्री फॉर्म होता है, जहाँ पर वो अगर उसे अपना नाम एंटर करना है इस इलेक्शन के लिए। हाँ, ये डिपॉजिट्स होता है।
The election of the president is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting at such election is by secret ballot. तो इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब जो स्टेट होता है उसके पॉपुलेशन के अनुसार उस स्टेट के लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उनका वोटिंग का जो ताकत होती है उस स्टेट की जनता के हिसाब से होता है, उस स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। मतलब कि अगर महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा स्टेट है, तो महाराष्ट्र का जो इलेक्ट्रल पावर्स होगा वह वहाँ जो महाराष्ट्र का जो एमपी होगा, एमएलए, महाराष्ट्र का जो एमएलए होगा उसके इलेक्ट्रल पावर्स गोवा के एमएलए से ज़्यादा होगा। गोवा का पॉपुलेशन छोटा है तो गोवा के जो एमएलए है उसकी ताकत कम होगी। एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट हैज़ as many vote as there are multiples of thousands in the quotient obtained by dividing the population of the state। तो क्या करते हैं, पॉपुलेशन को स्टेट को डिवाइड करते हैं बाय द नंबर ऑफ एमएलएज, कितने एमएलएज को सेलेक्ट किया है और उसको जो एमएलए इलेक्टेड है और वहाँ का पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। The voting power of an elected member of a Vidhan Sabha is calculated according to the following formula. Formula क्या है? Total population of the state divided by number of elected members of Vidhan Sabha into 1000. The following example will help to make the process clear. The population of a state is say 1 lakh. So total number of elected members 250 members. So total number of votes of each member is 1 lakh divided by 250, that is multiplied by 1000 is equal to 40, है ना। 1 लाख को 250 से डिवाइड किया और उसे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलता है आंसर? हमें आंसर मिलता है 40। तो यहाँ का जो एक एमएलए है उसके जो वोट की जो ताकत है वो 40 वोट के बराबर है, 40 सीटों के बराबर है। ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ सच नंबर ऑफ वोट्स एज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड टू एमएलएज ऑफ द स्टेट बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। दस वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, total number of votes assigned to MLAs of all states divided by total number of elected MPs। तो MPs के वोट्स कैसे नापे जाते हैं? तो MPs के वोट नापने के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो MLA को जो मिले हैं स्टेट्स के, टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड टू MLAs ऑफ ऑल स्टेट्स, पूरे स्टेट्स के MLAs के मिलाकर जो वोट आता है, जैसा 40 हो गया महाराष्ट्र से, 70 हो गया यूपी से, 2 हो गए गोवा से, ऐसे सबको ऐड अप करके जितने भी वोट्स आते हैं उसको फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज से, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट है, सपोज़ 550 मेंबर्स है तो ये 550 मेंबर्स से इसको डिवाइड किया जाएगा। समझ में आया? अगर टोटल वोट होता है 2000 तो 2000 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 550। सो जो जितने भी वोट आते हैं वो फिर वो एमपीज़ के वोट माने जाते हैं। तो ये केवल आपको समझने के लिए एग्ज़ाम में, बोर्ड में आपको इसके बारे में पूछेंगे नहीं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऐसा क्यों रखा गया है? Under the single transferable vote system, all candidates are listed and the electors give them numbers according to his preference. In other words, the voter makes as many preferences, preference number 1, 2, 3, 4, 5, 6,
etc. etc. On the ballot paper as there are candidates. यानी अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए 10 लोग खड़े हैं तो जो वोटर है, जो एमएलए है, एमपी है, वह इन 10 को वोट दे सकता है, लेकिन वो पहले अपना चॉइस यूज़ करेगा कि मैं कैंडिडेट जे को पहले नंबर पर रखना चाहता हूँ, कैंडिडेट आई को दूसरे नंबर पर, कैंडिडेट बी को तीसरे नंबर पर, ऐसा करेगा। यानी कोई भी कैंडिडेट को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वो वोट दे सकता है। उनके नाम के आगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लिखकर उसे अपना प्रेफरेंस दे सकता है। तो यानी एक एमएलए के पास में, एक एमपी के पास में वोट करने के लिए सभी को वोट देने का अधिकार है, लेकिन वो पहले अपना प्रेफरेंस लगाएगा। वंस द वोट्स आर कास्ट, the first preference votes are counted. If any candidate gets an absolute majority of 50% of the vote, he is declared elected. तो जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो वोट्स कैसे गिने जाते हैं? पहले ये देखते हैं कि सभी के फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट्स गिने जाते हैं। 10 के 10 कैंडिडेट अगर खड़े हैं तो 10 को पहला प्रेफरेंस कितना मिला है, और इसमें अगर किसी एक कैंडिडेट को 50% से अधिक वोट मिल जाते हैं तो इलेक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाता है, उसे प्रेसिडेंट घोषित कर लिया जाता है, विनर घोषित कर लिया जाता है। इफ़ एनी कैंडिडेट गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ वोट्स, ही इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। इफ़ नो कैंडिडेट इज़ एबल टू गेट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, then the candidate who has secured the least vote is eliminated and his second preference vote are taken into consideration. The process of elimination continues until the candidate gets an absolute majority and he is declared elected. तो पहला प्रेफरेंस वोट में अगर किसी को भी फुल एक मेजॉरिटी नहीं मिलती, 50% वोट्स नहीं मिलते, तो जिसे सबसे कम वोट मिला है पहले राउंड में, फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट में, उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसका नाम निकाल दिया जाता है, और फिर सेकेंड प्रेफरेंस वोट्स गिने जाते हैं। किसके पास सेकेंड प्रेफरेंस वोट, सेकेंड प्रेफरेंस ज़्यादा, किसको सेकेंड प्रेफरेंस ज़्यादा मिला। फिर अगर यहाँ पर भी कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं आता तो फिर से जो सबसे कम वोट वाला है उसको निकाल दिया जाता है, फिर थर्ड प्रेफरेंस वोट्स को गिने जाते हैं। इस प्रकार से वोट्स पर वोट्स चढ़ते जाते हैं और अल्टीमेटली जब तक का कोई कैंडिडेट मिलता नहीं तब तक का ये प्रोसीजर चलता रहता है। द 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 एंड द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 lay down that any dispute over the election of the president shall be decided by the Supreme Court. अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भेदभाव आता है, कोई ऑब्जेक्शनेबल बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर निर्णय लेगा कि क्या ये इलेक्शन फेयर हुआ या नहीं हुआ, क्या ये इलेक्शन लीगली तरीके से सही था या गलत था। इसके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्टली जो इलेक्टेड, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं वैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट क्यों नहीं करते हैं? उसके पीछे भी कोई कारण है। रीज़न फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट: इफ़ द प्रेसिडेंट वॉज टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ही कुड बिकम अ राइवल center of power to the council of ministers. This would be against the parliamentary system with ministerial responsibilities. अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता तो वह प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चैलेंज कर सकता है कि तुम में और मुझ में क्या फ़र्क है, मुझे भी तो लोगों ने सेलेक्ट किया है। देखो अभी रामनाथ कोविंद और प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन दोनों में फ़र्क क्या है? रामनाथ कोविंद को वही करना पड़ता है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनसे करवाते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भारतीय जनता ने इलेक्ट किया है, रामनाथ कोविंद को इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया ने इलेक्ट किया है। एज जवाहरलाल नेहरू सेड,
in the Constituent Assembly, we could not have a directly elected president and not give him a real powers. अगर डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे तो रियल उसको पावर्स हमें देने पड़ेंगे. Since the membership in the two houses of the parliament was likely to be dominated by one party, election of the president merely by a majority of members of the union parliament could make him a nominee of the ruling party like the prime minister. Such a president could not represent the constituent states of the union. तो अगर केवल MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही इलेक्ट करते तो प्रेसिडेंट पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन में रूलिंग पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं, तो ये रूलिंग पार्टी का पप्पू बनकर रह जाता. इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी था. द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रल कॉलेज. In India, the electoral college consists of the elected members of the two houses of the parliament and state legislative assemblies. That is, such an electoral college would make the president the elected representative of the whole nation with a clear voice given to the states as well. Oath of office. Before entering upon his office, the president takes an oath in the presence of the Chief Justice of India, or in his absence, the senior-most judge of the Supreme Court, to, number 1, discharge the functions of the President of India, 2, to preserve, protect and defend the Constitution and law of the country, and 3, to devote himself to the service as well as the well-being of the people of India. Term of office of the President. The President shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. He shall continue to hold office notwithstanding the expiry of his term until his successor takes charge. तो प्रेसिडेंट 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं. द प्रेसिडेंट हैज़ द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर 5 years, लेकिन 5 साल से ज़्यादा हो सकते हैं जब तक का एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए. When does a president vacate his office? The president shall vacate his office. He may have to submit his resignation letter to the vice president. अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देगा? वह रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में देगा. In order to resign his office, such resignation will be communicated by the vice president to the speaker of the Lok Sabha. ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? जब उसे प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन लेटर मिलता है तो वह ये रेजिग्नेशन लेटर स्पीकर को बताता है, लोकसभा के स्पीकर को बताता है कि रेजिग्नेशन लेटर आया है प्रेसिडेंट की ओर से. नंबर 2, द प्रेसिडेंट मे फॉर द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. तो एक तरीका है प्रेसिडेंट खुद रिज़ाइन कर दे और दूसरा तरीका है उसे इम्पीच कर दिया जाए. इम्पीच कब कर दिया जाता है? अगर प्रेसिडेंट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तोड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं किया है, तो उसे इम्पीच कर सकते हैं. प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट. व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन लेवल द चार्ज एज फॉलोज. तो अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो या तो लोकसभा में इम्पीच कर सकते हैं या राज्यसभा में इम्पीच कर सकते हैं. कोई भी हाउस, लोकसभा वाले अगर चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो वह ये प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर राज्यसभा वाले भी स्टार्ट कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पे रेजोल्यूशन which is moved after at least 14 days notice in writing signed by not less than 1/4 of the total members of the house. तो पहले तो प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, लिखित नोटिस दिया जाएगा, और इन नोटिस में कम से कम 1/4 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी जो लोकसभा ने अगर इम्पीच करने का तय किया है तो 1/4 मेंबर ने कम से कम इस नोटिस के ऊपर साइन करेंगे कि हम प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहते हैं. बी,
द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो एक बार अगर रेजोल्यूशन होता है तो जब वोट होती है कि प्रेसिडेंट को निकालना है कि नहीं निकालना है, तो कम से कम 2/3 हिस्से हाउस का जो ताकत है, 2/3 लोग ने प्रेसिडेंट को इम्पीच करने में वोट करना है। व्हेन अ चार्ज हैज़ बीन सो प्रिफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द अदर हाउस will investigate the charge and the president has the right to appear and be represented at such an investigation। तो जब ये चार्ज लगता है तो प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वह उस इन्वेस्टिगेशन में, जब इन्वेस्टिगेट होता है कि क्या वाकई में प्रेसिडेंट ने कोई कानून तोड़ा है जिसकी वजह से हम उसको इम्पीच कर रहे हैं, तो तभी प्रेसिडेंट हाजिर रह सकते हैं, वह चाहे तो हाजिर रह सकते हैं। इफ़ as a result of an investigation, a resolution is passed by a majority of not less than 2/3 of the total members of the House, by which the charge was investigated, declaring that the charge has been sustained, such a resolution will have the effect of removing the president from his office। और अगर ऐसा पाया जाता है कि वाकई में प्रेसिडेंट ने कुछ कानून तोड़ा है, कुछ नियम तोड़े हैं, कानून का पालन नहीं किया है, अपनी मनमानी की है, तो और 2/3 मेजॉरिटी ने वोट कर दिया है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के फेवर में, तो फिर प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट के पास में पावर्स क्या है, किस पावर्स का वो इस्तेमाल कर सकता है कि ताकि वो इम्पीच ना हो। प्रेसिडेंट के पास में एग्जीक्यूटिव पावर्स है। द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड, ही इज़ द हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन। All executive orders are issued in the name of the president. All the union officials are his subordinates। तो प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल हेड है, लेकिन जितने भी ऑर्डर्स निकलते हैं वह प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बगैर कंप्लीट नहीं होते। जितने भी यूनियन ऑफिशियल्स है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वह प्रेसिडेंट के नीचे काम करते हैं, वह उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट्स। द प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट्स टू की पोस्ट्स टू रन द गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। तो प्रेसिडेंट है जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। एक बार प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, फिर इसके आगे प्राइम मिनिस्टर की चलती है। प्राइम मिनिस्टर जिसे अपॉइंट करना चाहेगा अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वह जिसे चुनेगा प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस, ही समन्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप इन द पार्लियामेंट एंड आस्क्स हिम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये डिस्क्रिशन पावर है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या करेगा, जिस पार्टी को मैक्सिमम वोट मिलते हैं जनरल इलेक्शन में, उसके लीडर को पहले बुलाएगा और बोलेगा बताइए कि आपको किसे प्राइम मिनिस्टर बनाना है। फिर उसके बाद एक बार वो लीडर को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया जाता है, इसके आगे वो लीडर जो है, जो प्राइम मिनिस्टर जो बनता है, वह आगे की कार्रवाई में प्रेसिडेंट को एडवाइस करते चलता है। द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। The governors of the states are appointed by the president. The lieutenant governors and the chief commissioners of union territories, the attorney general of India, the comptroller and auditor general of India, the chairman and the members of the union public services commission, the chairman and the members of the planning commission, the chairman and the members of the the economic commission, whenever appointed, all these are appointed under the name of the president। कंट्रोल ओवर स्टेट गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट के पास में स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का अधिकार कैसा होता है, देखो। द यूनियन गवर्नमेंट मे गिव नेसेसरी डायरेक्शंस टू अ स्टेट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल। द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ओवर द स्टेट इज़ कंप्लीट। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर तो वैसा तो प्राइम मिनिस्टर का और उसके चीफ मिनिस्टर्स का अधिकार होता है, लेकिन कभी कभी स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तब कंप्लीट गवर्नेंस जो है वो प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाता है। वरना टाइम टू टाइम से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ आदेश देती है और स्टेट गवर्नमेंट को वो आदेश
पालन करना पड़ता है। यूनियन टेरिटरीज एंड बॉर्डर एरियाज, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड द बॉर्डर एरियाज इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज होंगे और जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डरिंग एरियाज़ होंगे, वहाँ का जो ये कंट्रोल रहेगा वो प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगा। डिप्लोमेटिक पावर्स, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ अपॉइंटिंग इंडियन एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज़, ये इसके डिप्लोमेटिक पावर्स है। ही रिसीव्स एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स मतलब राष्ट्रदूत, कोई देश से कोई राष्ट्रदूत आ रहा है, फ्रांस से कोई आ रहा है, जर्मनी से कोई आ रहा है, तो ये प्रेसिडेंट उनको रिसीव करेंगे। ही रिसीव्स एम्बेसडर्स, high commissioners and diplomatic envoys from foreign nations. All treaties and international agreements are concluded in the name of the president. हर ट्रीटीज़ के ऊपर प्रेसिडेंट का साइन होगा, मोहर होगा। The president represents India in international conferences. ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के डोमेस्टिक डिप्लोमेटिक पावर्स है। वैसे ही प्रेसिडेंट के पास में लेजिस्लेटिव पावर्स भी है। हाँ, तो लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या, ही एड्रेसेस द सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करता है। जो भी मैसेज देना है पार्लियामेंट को वो प्रेसिडेंट के द्वारा जाता है। जब हाउस को समन करना है, हाउस को प्रोरोग करना है, यानी लोकसभा राज्यसभा को जब समर हॉलीडेज़ मिलता है बीच में, तो ये प्रेसिडेंट उसे समन करता है, या प्रेसिडेंट बोलता है कि विंटर सेशन स्टार्ट हो गया है, मानसून सेशन स्टार्ट हुआ है, इसको कहते हैं समन करते हैं। और प्रोरोग मतलब बीच की जो छुट्टी जो देती है इसको प्रोरोग कहते हैं। वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, बिल्स को एसेंट देना ये उनके लेजिस्लेटिव पावर्स है। ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करना ये लेजिस्लेटिव पावर्स है। ये सब प्रेसिडेंट के अधिकार है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी मिल गई है।